अगर आप भी यहाँ पर आकर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जाकर आप वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, फिर आपका भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा और आप भी यहाँ पे आके इंटरव्यू दे पाएंगे। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारा द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उस कोर्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप पूरा का पूरा फ्रंट एंड ही पढ़ना चाहते हैं, HTML से लेके CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, गिट एंड गिटहब, NPM, टेलविंड, रिएक्ट, रिडक्स, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने एक कोर्स बनाया है, पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड बूट कैंप। उस कोर्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको हर एक कोर्स फ्री में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से जाके इन कोर्सेज को चेकआउट करिए। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाय नितिन, हाउ आर यू? I'm fine, Ria. How are you? Yeah, I'm good too. So this interview is for front end development. Okay. So Yeah. before we proceed to some technical questions, can you introduce yourself about your education? Yeah. Yes, Ria. My name is Nitin Yadav. I was born and brought up in Kannauj, and I belong to a middle class family. As far as my qualification is concerned, I have done my 12th, and currently I'm pursuing BSc and also preparing for web development. And I want to be a full stack web developer. And I have skills like HTML, CSS, JavaScript, Core React.js, Tailwind CSS. Thank you. Okay. Yeah, that's good. So are you comfortable doing interview in English, or shall we do English Hindi mix? Mixed, Ria. Okay. Okay. So since how long? Like you can answer in Hindi. Okay. I will try to ask questions in English. Okay. Okay. So we will do mix. Like whenever you are comfortable, you can answer in English. Otherwise, you can do in Hindi. Okay. Okay, Ria. So how long have you been learning web development? 6 months. Okay. So what are all the technologies that you have learned so far? HTML, CSS, JavaScript, and Core React.js, Tailwind CSS. Okay. If I ask you to rate yourself out of 10 points, how many points will you give yourself to HTML, CSS? Let's say, let's skip HTML, CSS, JavaScript, and React. How many points will you give? 6. Okay. For everything, you will give 6? Yes. Okay. Okay, so now let's move to our technical questions. So basically, this interview will be divided in 3 rounds, we can say. First is like explain round or theoretical round, where I will ask some question, you have to explain. Okay, that will be around 20 minutes. And then after that, what we will do is some output based questions, where you have to answer the question. I will send you some code snippets, you have to see and answer it. And then we'll do some project based round, which is called machine coding round, where I will ask you to make some small project. Okay. Okay, Ria. वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक DSA कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है गीक्स फॉर गीक्स का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन जावास्क्रिप्ट। इसको गीक्स फॉर गीक्स के फाउंडर संदीप जैन सर ने खुद पढ़ाया है। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छे से कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं। मैं खुद ये कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, एकदम मेरे जैसे पढ़ाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका ये कोर्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर DSA सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये कोर्स खरीदते हैं तो आपको 800 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको इफेक्टिवली 3199 रुपए में मिलेगा। अगर आप GFG के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप हमारा कूपन कोड PROCODER20 यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी कोर्स पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो can you explain me what is HTTP? HTTP stands for Hypertext Protocol. Okay, you can explain in Hindi whatever you know. Like हिंदी में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी तुम्हें समझ आता है। So basically मैंने बैकएंड्स पढ़ा नहीं है, तो HTTP कितना नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, तो जब कोई वेबसाइट लोड होती है तो हम्म। किस ऑर्डर में लोड होती है? जैसे which थिंग लोड्स फर्स्ट, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, क्या पहले लोड होता है, या फिर सब साथ में एच लोड होता है?
HTML ही लोड होती है क्योंकि HTML ही स्केलेटन होता है हमारा। हम्म, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लोड होता है? साथ में ही लोड होती है, मतलब HTML हमारा स्केलेटन होता है तो वही पूरा, हम्म, उसका पूरा इकट्ठा लोड होता है सब। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमेंटिक एचटीएमएल क्या है? सिमेंटिक टैग जो हमारा HTML5 है हम्म, उसमें आए हुए हैं, जैसे कि लाइक हेडर टैग है हमारा, और मेन टैग है, हम्म, फूटर टैग है। ओके, तो इसका काम क्या होता है? व्हाट व्हाई डू वी यूज सिमेंटिक टैग्स? हमारी कोड को पढ़ने का थोड़ा तरीका अच्छा हो जाता है, जैसे हेडर टैग से समझ में आ रहा है कि हमारा हेडर ही है इसमें, और हम्म, फुटर टैग में समझ में आ रहा है कि फुटर टैग ही है। बाकी हम हम्म, लोग इसकी जगह डिव भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक तो ये सही रहता है कि हमें कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है ना? हाँ, रीडेबिलिटी अच्छी रहती है, हाँ। हाँ, ये एक हो गया रीजन, और कोई रीजन है? और कोई स्पेसिफिक रीजन तो मुझे नहीं पता भैया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट रीजन होता है, उसके लिए सिमेंटिक टैग्स यूज करते हैं, उसको तुम बाद में देखना। बेसिकली एसईओ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, SEO के लिए, हाँ ठीक है। ठीक है, और डॉक टाइप हम क्यों यूज करते हैं एचटीएमएल में सबसे ऊपर? उसका क्या मतलब होता है? डॉक टाइप का मतलब भैया ऐसा होता है कि जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो उसका टाइप। अच्छा, क्योंकि डॉक टाइप, इसीलिए यस। तो और क्या हो सकता है डॉक टाइप? इसका आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तुम ढूंढना क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर? HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स, जैसे हम स्टाइल टैग यूज करते हैं HTML इनलाइन में, हम्म, एट्रीब्यूट वो भी होता है। और जैसे अगर हम इनपुट टैग लेते हैं उसमें रीड ओनली लगाते हैं, वो भी हमारा एट्रीब्यूट होता है। हम्म, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट के एग्जांपल्स हैं जो तुमने दिए हैं, जो जी, कि अच्छी बात है। जी। ये भी सीखो कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है, ठीक है। जो तुमने दिए हैं वो एग्जांपल्स हैं, लेकिन अच्छा है, इतना भी सही है। और डेटा एट्रीब्यूट तुमने सुना है? एचटीएमएल के ऊपर हम डेटा एट्रीब्यूट्स देते हैं। डेटा नहीं, जैसे जैसे क्लास हो गया, रीड ओनली हो गया, है ना, href एट्रीब्यूट हो गया, ऐसे ही एक डेटा करके एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कोई वो बात नहीं। नहीं सुना है। ठीक है, और मेटा टैग्स का क्या काम होता है एचटीएमएल के अंदर? मेटा टैग हेड टैग के अंदर यूज होता है, और हम्म, मेटा टैग बेसिकली SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सही है, और भी कुछ करता है मेटा टैग? रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज और होता है। हम्म, ठीक है, और div टैग और span टैग के बीच में क्या अंतर है? स्पैन टैग जो इनलाइन एलिमेंट है हमारा, हम्म, और डिप टैग जो ब्लॉक एलिमेंट है। हम्म, सही, एकदम करेक्ट। अब ये बताओ मुझे कि स्पैन और इनलाइन ये क्या होता है? जो बेसिकली जो हमारा इनलाइन टैग होता है, तो वो उतनी ही विड्थ लेता है जितना कि उसमें कंटेंट होता है। हम्म, वो इनलाइन एलिमेंट होता है, और जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है वो विड्थ पूरी लेता है जितनी भी स्क्रीन होती है। ठीक है, इनलाइन के कोई एग्जांपल्स मुझे दिखा सकते हो? एग्जांपल्स लाइक स्पैन टैग हो गया हमारा, इमेज टैग हो गया, हम्म, और जैसे कि, और कोई बात नहीं। तुमने अभी इससे पहले कहा कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर करता है ना, विड्थ जी। लेता है। तो मान लो कि एक हमारे पास पेरेंट डिव है जिसकी विड्थ हमने फिक्स कर दी है 500 पिक्सल, ठीक हम्म। है। और उसके अंदर हम एक और डिव रखते हैं, उसका चाइल्ड नाम दे देते हैं, उसके अंदर हाय या हेलो कुछ भी रखते हैं, तो उस चाइल्ड की विड्थ क्या होगी? वो स्क्रीन का साइज नहीं लेता है, बेसिकली जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग लेता है। तो ऐसा बोलो ना, ठीक है, वो वो अंतर है ना?
जी तो जी। इसको एकदम स्पेसिफिकली क्लियरली बोला करो। पेरेंट की विड्थ कवर करता है, हाँ। स्क्रीन की नहीं। ये तुम्हें बोलना है, नहीं हम्म, बेसिकली ये बोलना है। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने पेरेंट की 100% विड्थ कवर करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे तुमने एग्जांपल दिया इनलाइन एलिमेंट्स का, तो क्या हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर? अगर उसको हम प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक दे देंगे तभी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली नहीं सेट कर सकते हैं। नॉर्मली विड्थ नहीं सेट कर सकते। ठीक है, तुमने एग्जांपल दिया था कि इनलाइन जो इमेज है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, तो उस पे तो हम लोग नॉर्मली सेट कर सकते हैं हाइट विड्थ, है ना। उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो करना नहीं पड़ता है, और इमेज इनलाइन एलिमेंट ही है। हम्म, ये मत कंफ्यूज होना कि इनलाइन ब्लॉक होगा। नहीं वो इन इनलाइन है तो कंफर्म है हम्म, मुझे। हाँ, तो उस पे वैसे तो हाइट और विड्थ बस कैसे सेट कैसे सेट कर पाते हैं? वैसे लाइन टेक्स्ट में तो नहीं विड्थ होती है, इमेज में कैसे हो जाती है नहीं आइडिया मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, इसको तुम रिसर्च करना। मैंने एक बॉक्स मॉडल की वीडियो में बताया, बॉक्स मॉडल की 3 वीडियो मैंने बनाई है, इसमें से हम्म, तीसरी वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि ऐसा क्या होता है। केवल इमेज के साथ नहीं होता है, वीडियो टैग के साथ भी होता है ऐसे ही, आई हाँ फ्रेम के मीडिया साथ। टैक्स जितने भी होते हैं हाँ। हाँ, आई फ्रेम के साथ होता है। तो वो सारे इनलाइन होते हैं, लेकिन फिर भी हाइट विड्थ हम सेट कर पाते हैं, तो कुछ अंतर होता है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएसएस के अंदर मुझे बताओ कि सीएसएस का फुल फॉर्म पहले बताओ मुझे। कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो स्टाइल शीट का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्टाइलिंग के लिए जो भी लिखा गया उसकी शीट। कैस्केडिंग का क्या मतलब है? कैस्केडिंग नहीं आइडिया है। नहीं आइडिया है ना, फुल फॉर्म में ही अटक गया तुम। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना कि कैस्केडिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी पता है सीएसएस के अंदर हाँ क्या होता है? स्पेसिफिटी लाइक जिसकी स्पेसिफिटी ज़्यादा होती है उससे, जैसे हमारा आईडी होती है तो हम्म, आईडी की स्पेसिफिटी सबसे ज़्यादा होती है, आईडी जहाँ पे लगाएंगे उसकी सीएसएस पहले फायर होती है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने एक आईडी लिया है, ठीक है, और एक पैराग्राफ है लेट्स से। ठीक, पैराग्राफ पे हमने आईडी दे दी पैराग्राफ, एक पी टैग है जिसपे हमने आईडी दे दी पैराग्राफ। ठीक है, अब उस पे हमने सीएसएस में आके दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ऐसा कुछ दे दिया हमने। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें नीचे कुछ नहीं लिखना है। जैसे तुमने मान लो लाइन नंबर 5 पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। अब अगर तुम आईडी यूज करके आईडी यूज करके फिर से अगर उस पे बैकग्राउंड कलर रेड दे दोगे, तो ग्रीन वाला ओवरराइट हो जाएगा। जो नीचे आता है वो मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को ओवरराइट कर देता है ना। मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ऊपर लिखना है और तुम्हें वो रेड कलर लेके आना है, तो कैसे करोगे? मतलब जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है और उसको हाँ, हमने एक आईडी दे रखी है और उसको मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया हुआ है। हाँ, बैकग्राउंड कलर रेड दिया है। लाइन नंबर 5 पे मान लो सीएसएस है, उसमें लाइन नंबर 5 पे तुमने जाके बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है। अब मैं बोलता हूँ लाइन हाँ नंबर 2 पे तुम्हें ऐसा कुछ सीएसएस लिखना है जो कि लाइन नंबर 10 को ओवरराइड कर दे। कैसे करोगे? तो इसके लिए हम इनलाइन सीएसएस भी यूज कर सकते हैं। इनलाइन नहीं, उसकी सीएसएस फाइल में जाके करना है तुम्हें। सीएसएस फाइल में ही करना है। सीएसएस फाइल में करना है और उस लाइन के ऊपर करना है। नीचे कर दोगे तब तो उस ओवरराइट हो जाएगा आराम से। ऊपर ही तो ओवरराइट उसका करना है। ओवरराइट करना है ऊपर से और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। हाँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन से चेंज होके रेड हो जाए। एचटीएमएल में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, और नीचे जो सीएसएस लिखा है उसमें नहीं चेंज करना है। तो ऊपर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीएसएस लिखना है, नीचे नहीं लिखना। उससे आईडी के बाहर भी नहीं जा सकते हैं, कोई दूसरा अगर टैग लेना चाहें। हाँ, ले सकते हो अगर तुम्हें
तुम मतलब आईडी के अलावा और कुछ जो जो चाहो वो यूज कर सकते हो। सीएसएस के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस शर्त यह है कि उस पांच लाइन नंबर 5 के ऊपर लिखना है, जो मन करे वो लिखो। और इम्पोर्टेंट टैग इम्पोर्टेंट यूज करना है, ये चीज याद दिला। इम्पोर्टेंट है कि उस तो ऐसे कर देंगे सब भैया कि बैकग्राउंड कलर ऊपर एक बार और दे देंगे, उसको इम्पोर्टेंट कर देंगे। नहीं, वही इम्पोर्टेंट एक। इम्पोर्टेंट नहीं करना है, ये मैं याद दिला दूं, ये भूल गया अच्छा, था। इम्पोर्टेंट भी नहीं करना है। हाँ, इम्पोर्टेंट भी नहीं करना है। ये कैसे करोगे? पी टैग से कर देंगे, जैसे पी टैग को टारगेट कर लेंगे टैग से। तो टैग से अगर टारगेट करोगे तो टैग की तो स्पेसिफिसिटी और भी कम होती है, वो तो अगर नीचे जाके करोगे उसके तब भी नहीं होगा। आईडी और पी टैग में तो आईडी ही जीतेगा ना। ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम मुझे ये बताओ, बॉक्स साइजिंग तुमने सुना है ना? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, ये दो चीज होती हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो हमारे कंटेंट बॉक्स होता है वो पहले से ही हमें सीएसएस पहले से ही देती है, मतलब डिफॉल्ट होता है। और जो बॉर्डर हम्म, बॉक्स होता है हम लोग सेट करते हैं, उसमें मार्जिन पैडिंग सब जीरो हो जाता है। अच्छा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स बॉक्स। से मतलब नहीं, मार्जिन पैडिंग जीरो नहीं होता है। हम्म, बॉर्डर बॉक्स से एक बॉक्स मॉडल बन जाता है हमारी जो वेबसाइट होती है, तो फिर मार्जिन पैडिंग हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम वो ना दें तो? तो फिर डिफॉल्ट जितने भी होंगी वो भी साथ में वर्क करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दो या ना दो, जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है वो तो सारी रहेगी। तो कंटेंट बॉक्स रहता है। हाँ, कंटेंट बॉक्स रहता है बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू। तो कंटेंट बॉक्स करने में, कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट होता है। उससे जब हम बॉर्डर बॉक्स में चेंज कर देते हैं तो क्या अंतर होता है उससे? क्यों करते हैं उसको? तो उसमें हमारा बॉक्स मॉडल फिक्स हो जाता है कि जो वेबसाइट होती है बॉक्स मॉडल पे आ जाती है। पहले बॉक्स मॉडल पे नहीं रहती है? नहीं, जो वो कंटेंट बॉक्स पे रहती है। अच्छा, ठीक है। ये ये नहीं सही है। ठीक है, इसको तुम देखना कि ऐसा क्यों होता है। तो बॉक्स मॉडल के ऊपर जो तीनों वीडियोस है ना, उसको तुम देख लोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट, इसमें क्या अंतर है? ये बताने से पहले मुझे ये बताओ कि पोजीशन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, पोजीशन प्रॉपर्टी की। स्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक। हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है? जैसे कि अगर हमारे पास कोई बॉक्स होता है, तो अगर हम उस बॉक्स के ऊपर लाना चाहते हैं किसी दूसरे बॉक्स को, तो पेरेंट को हम रिलेटिव दे देते हैं, और जो एब्सोल्यूट होता है वो उस चाइल्ड को दे देते हैं, तो अपने आप से ऊपर उसके आ जाता है। ठीक है, और बस केवल ऊपर लाने के लिए हम उसको यूज करते हैं? नहीं, अगर उसको हम एब्सोल्यूट से उसको मतलब वेबसाइट जो हमारा पेरेंट होगा वो कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं हम। उसको मतलब उस बॉक्स के अंदर कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप हम्म, बॉटम। ठीक है। और अगर रिलेटिव देते हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसा नहीं कर सकते? अगर मतलब रिलेटिव क्या है, वो पेरेंट को हम देते हैं। ठीक है, बस केवल पेरेंट को दे सकते हैं, चाइल्ड को नहीं देते हैं। जैसे मान लो चाइल्ड है, अगर देते उसको हैं रिलेटिव। हम्म, चाइल्ड को रिलेटिव देना है। हाँ। कोई अगर केस बनता है कि मतलब चाइल्ड के अंदर भी कोई चाइल्ड है, तो चाइल्ड को भी दे मान लो सकते चाइल्ड हैं। के अंदर कोई चाइल्ड नहीं है, बस वो आखिरी चाइल्ड है खुद ही, तो रिलेटिव दे सकते हैं, उसका कोई मतलब होगा? नहीं, ऐसे तो कुछ मैंने कभी लगाया नहीं, यूज नहीं किया उसको। ठीक है, वो उसका भी मतलब होता है, अलग तरह से यूज करते हैं रिलेटिव को। ठीक है, अभी तक तुमने ऐसे यूज किया होगा, जब किसी चाइल्ड को क्वेश्चन एब्सोल्यूट देना होता है तो पेरेंट को रिलेटिव दे देते हैं। हम्म, लेकिन केवल इतना ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको भी, अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो इसकी पोजीशन के ऊपर वीडियो तुम देख सकते हो। ठीक।
और अब जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है? सिंगल थ्रेडेड। इसका क्या मतलब है? थ्रेड के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे भैया। ठीक है। बस पढ़ा है कि सिंगल थ्रेड है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं बेसिकली डेटा टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर हमारा स्ट्रिंग आता है, इंट आता है, बूलियन आता है, नन आता है, अनडिफाइंड आता है, हम्म। और हमारा नॉन प्रिमिटिव के तो ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, तो ये दो कैटेगरीज में अलग अलग ऐसा क्यों डिवाइड किया गया? क्या कोई अंतर है? बेसिकली तो अगर देखा जाए तो हमारा जो एरे होता है या ऑब्जेक्ट हो, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज तो ऑब्जेक्ट ही है। हम्म। लेकिन स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं पता है मुझे कि क्यों दो टाइप में बांटा गया इसको। ठीक है। जब तुम बोलते हो कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज ऑब्जेक्ट ही है, तो क्या नंबर भी ऑब्जेक्ट है? नहीं। देखो, जब भी तुम्हें आंसर्स ना पता हो, जैसे अभी इसमें क्या है, इसमें कोई तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई सोचना नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है इसमें। या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तुरंत रिस्पॉन्ड कर देना है। 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लो। जैसे अभी तुमने कम से कम 5 सेकंड का टाइम लिया या 7 सेकंड का, उतना टाइम मत लो, ठीक है। ठीक है भैया। तुरंत बता दो कि ये नहीं पता है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ये मुझे बताओ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? वेरिएबल्स लाइक कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है। कितने तरीकों से हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं? तीन तरीकों से, लेट, वैर और कॉन्स्ट। ठीक है। तो ये लेट और वार में क्या अंतर होता है? जो भी हमारा वैर होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, और जो लेट होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। अच्छा। कोई भी मतलब अगर कोई स्कोप दिया हुआ है करली ब्रेसेस से लगे हुए हैं, तो उसके अंदर अगर लेट दिया हुआ है तो उसको बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करना। जो हमारा वैर होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, हम्म। और जो लेट होता है वो हमारा ग्लोबल क्या नाम है, करली ब्रेसेस के अंदर हाँ, अगर है तो फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, ये गलत। ठीक है। जो var होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, जो let होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना तुम कि ऐसा क्यों होता है। और ये हो गया मेन डिफरेंस। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये डॉम का क्या काम होता है? डॉम क्या होता है? डॉम की हेल्प से हम एचटीएमएल में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, सीएसएस में कोई चेंजेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अच्छा, सीएसएस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं डॉम का मदद से? कोई भी एचटीएमएल जैसे टैग में अगर हमने कोई सीएसएस लगा रखी है तो उसमें आईडी या क्लास देके उसको डॉम की हेल्प से हम टारगेट करेंगे, और उस डॉम से कर देंगे उसको चेंज। ठीक है, ठीक है। अभी ये हमारा, तुम्हें रिएक्ट भी आता है ना? रिएक्ट के भी क्वेश्चंस किए थे। हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये बताना मुझे कि हम रिएक्ट यूज ही क्यों करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में ही क्यों नहीं बना लेते सब कुछ? क्योंकि भैया जो रिएक्ट होता है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बनाता है। हम्म। और जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट बना रहे सिंगल पेज एप्लीकेशन में, तो उसमें री रेंडर नहीं होता है कई बार, कि हम अगर किसी एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो वेबसाइट रिलोड नहीं होती हमारी, तो इससे जो हमारी वेबसाइट है वो स्मूथ चलती है। ठीक है। लेकिन ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं अगर चाहें तो।
ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हिस्ट्री एपीआई होती है, उसका यूज हम्म, करके ये किया जा सकता है। तो और भी रीजंस होंगे जिसके कारण हम रिएक्ट यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये बता सकते हो रिएक्ट के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं? व्हाट इज अ रिएक्ट एलिमेंट? ये जानकारी तो कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो वो एक हमारा एलिमेंट है। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करना, तुम्हारी आवाज नेटवर्क के कारण कट गई है। जैसे मैं रिएक्ट के अंदर हम लोग बेसिकली जेएसएक्स लिखते हैं, हम्म, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का जो मिक्सअप, हम्म, मतलब उसको जेएसएक्स बोलते हैं लेकिन सिमिलर जावा एचटीएमएल के होती है। हम्म, तो उसमें जो हमारा रिटर्न फंक्शनल अगर हम कंपोनेंट बना रहे हैं कोई, तो उसके अंदर हम रिटर्न करते हैं कोई भी एक ही एलिमेंट, उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो हम हम्म। अगर कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो वो कंपोनेंट जो होता है वो हमारा एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो फिर कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट लाइक जैसे हम अगर कोई अपनी वेबसाइट बना हम्म, रहे हैं, तो उसमें हम्म, कई सिमिलर चीजें हैं, जैसे कि अगर हम कोई एक बॉक्स बना रहे हैं, तो उस बॉक्स को हम अगर कई जगह यूज कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट हम्म, बना लेंगे और उसको कई जगह हम्म। यूज कर सकते हैं। हाँ, तो तुमने बोला कंपोनेंट और एलिमेंट सेम ही चीज होती है, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं है। एलिमेंट थोड़ा अलग चीज होता है। ठीक है। ये बताओ, यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो का क्या मतलब होता है? इसका नाम सुना सुना है तुमने रिएक्ट के अंदर? नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा। थोड़ा सा मैंने उसका ओवरव्यू रिएक्ट कर लिया है, अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, अभी पढ़ रहा हूँ उसको मैं। अच्छा, ठीक है, तो अब रिएक्ट के अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं। हम थोड़ा सा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, तुम इसका आउटपुट मुझे बताना कि क्या होगा। ठीक है। मैं यहाँ चैट में भेजूंगा तुम्हें क्वेश्चंस। हेलो। नेटवर्क में दिक्कत है, या तो मेरे नेटवर्क में है या फिर तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत है। मेरे में ही है शायद। हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है, शायद नेटवर्क में इशू था, पता नहीं किसके नेटवर्क में था। तो मैं तुम्हें यहाँ पे चैट में कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। ठीक है। इसको तुम्हें देखना है और इसका आउटपुट तुम्हें गेस करना है कि आउटपुट क्या होगा इसका। ये तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो पहले, और वीएस कोड में इस कोड को पेस्ट कर लो। एक फोल्डर बना के ओपन कर लो उसको। हेलो। यस, यस। हाँ, तो अब इसका भैया जो आउट इसका आउटपुट हो, इसका जो आउटपुट हो अनडिफाइन होगा। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों होगा इसका आउटपुट? ये भैया होता है होस्टिंग के कारण।
जैसे कि अगर हमने वेरिएबल एक्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, ऊपर से हमने एक्स 20 डिफाइन किया हुआ है, हम्म लेकिन होस्टिंग क्या करता है, जैसे कि हमने फंक्शन के अंदर हम आए, तो जो वैर होता है, आपने जैसे बताया था कि वो ग्लोबल नहीं होता है, फंक्शन स्कोप होता है। हम्म तो जो वेरिएबल हमारा एक्स हमने नीचे भी 10 को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जब अगर होस्टिंग होगी, क्योंकि उसको हमने पहले कंसोल लॉग किया हुआ है, तो पहले क्या होस्टिंग क्या करती है, वेरिएबल एक्स को पूरे पहले डिक्लेयर करती है ऊपर। हम्म उसके बाद जो हमारा होता है एक्स बराबर तब 10 आता है। तो पहले से इसमें जब फंक्शन चलेगा, तो जो var एक्स दिया हुआ है वो ऊपर से एक्स डिक्लेयर हो जाएगा, इसीलिए वो अनडिफाइंड प्रिंट। अच्छा, ठीक है। ये शैडोइंग का कॉन्सेप्ट तुमने सुना है? वेरिएबल शैडोइंग। नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइन नंबर 4 पे जो, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जो कॉन्सोल लॉग लाइन नंबर 3 पे लिखा है, इसको ओके। लिख दो लाइन नंबर 6 के बाद। लाइन नंबर 6 के बाद लिख दो। नहीं, वहां पे भी रहने दो, यहाँ पे भी लिख दो, दोनों जगह, मतलब कॉपी पेस्ट अच्छा। करके जहां पहले था उधर रहने दो। हम्म, तो अब बताओ लाइन नंबर 7 से क्या आउटपुट आएगा? हम्म, 10। ठीक है, 10 क्यों आएगा? क्योंकि जो भैया बैर है, बैर जो होता है वो ऊपर से भी एक्सेस हो जाएगा। एक्स बराबर 20 दिया, फिर ऊपर से नीचे से जो हमारा एक्स 10 दिया हुआ है, तो हम्म, जो लास्ट वाला ही एलिमेंट लेगा वो। अच्छा, बेसिकली 20 जो है वो ओवरराइट हो चुका है। हाँ, ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर सकते हो क्या कहीं? इसको रन करो, चेक करो। तो क्या है? अच्छा, एक काम करो, थोड़ा जूम इन ओके। कर लो, तुम्हारा वीएस कोड बहुत ही छोटा है। इसको जूम करो, हाँ। टर्मिनल को भी जूम कर दो। हाँ, इतना ठीक है। टर्मिनल पे भी जूम कर लो। हो रहा है? टर्मिनल पे टर्मिनल जूम। जूम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया। कंट्रोल प्लस से जूम नहीं हो रहा है ये? नहीं। हम्म, ठीक है, और इसमें रन भी मत करो, एक एचटीएमएल फाइल कनेक्ट करके ब्राउजर में रन करो, क्योंकि इसके ओके लिए तो भैया। ठीक है। अभी और भी चीजें करेंगे ना, तो वहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और टर्मिनल बंद करके थोड़ा और जूम इन कर लो, ताकि लोगों को क्लियरली दिखे। एक एक स्टेप और जूम इन कर लो। बस बस, ठीक है। यहाँ पे एक लिख दो, हेलो वर्ल्ड या ऐसा कुछ लगा दो H1 में। बस, ठीक है, इसका कंसोल भी जूम इन कर लो। और वेब पेज तो ठीक है, कंसोल भी काफ़ी बड़ा कर दो जूम करके। ये तो भैया नहीं हो रहा है। होना चाहिए, कंट्रोल प्लस दबाओ या कमांड प्लस दबाओ। हो गया हो गया। हम्म, ठीक है, बस बस, काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ रहा है उसका आउटपुट। ये हम्म। कैसे हुआ? 10 को एक्स को ओवरराइड नहीं किया इसने। तो एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्या? इसका नहीं पता चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। या फिर एक बार वीएस कोड में आ जाओ, वीएस कोड में आ जाओ, इसी में थोड़ा सा मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे जो वार लिखा है, जी भैया। उस वार की, हाँ, वार को बस हटा दो, x इज इक्वल टू 10 रहने दो, बस वार हटा दो। अब क्या होगा?
दोनों जगह से क्या आउटपुट आएगा? अब ये जो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है वहां पे 20 आएगा और उसके बाद ये ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 3 से 20 आएगा, लाइन नंबर 7 से हम्म 10 आएगा, ऐसा है? ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, इसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब एक बार ठीक और है। VS कोड में आ जाओ, मैं कुछ और चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइन नंबर 1 है उसको हटा दो, एकदम से हटा दो, बस। अब क्या होगा आउटपुट? इसके आगे कोई टाइप भी नहीं लिखेंगे किस टाइप का वेरिएबल है? टाइप नहीं बोलते हैं, वो कीवर्ड है एक तरह से। हाँ एक, कीवर्ड। हाँ, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही अनडिफाइन और 10। अनडिफाइंड आएगा और 10 आएगा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? होस्टिंग से हो सकता है सर भैया। अच्छा, ठीक है, इसको चेक कर सकते हो तुम। एरर आ रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड क्योंकि सर भैया उसको क्या नाम कीवर्ड नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अभी मैं आओ, हम्म, इसमें आओ, एक बार मैं बताता हूँ। इस लाइन नंबर 4 को ऊपर कर दो, लाइन नंबर 3 को नीचे कर दो, बस स्विच कर दो इसको। अब क्या होगा आउटपुट? इसमें भी कीवर्ड नहीं देंगे भैया? हाँ, ऐसे ही रहेगा। ऊपर कोई डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ है? कुछ भी नहीं किया। एरर आएगा भैया। वही सेम एरर। हाँ एक्स इज नॉट डिफाइंड। चेक कर लो इसको। 10। हम्म, ये मुझे समझ नहीं आया भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अगर समझना है तो इसके ऊपर शायद मैंने वीडियो ना बनाया हो, इसको संडे लाइव में आके समझ लेना। ठीक है, हाँ, खुद ही ट्राई हम्म, करोगे, एक्सप्लेन समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोजर्स तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ थोड़ा सा पता है। अच्छा, तो ऐसे ही बताओ पहले क्या होता है। जैसे भैया अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं उसमें सबसे पहले लेक्सिकल स्कोप काम आता है। हम्म। जो हमारा लेक्सिकल स्कोप होता है जैसे कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे हैं तो हम्म। जो हमारा पेरेंट फंक्शन होगा जो चाइल्ड फंक्शन होगा वो पेरेंट फंक्शन की वैल्यूज एक्सेस कर सकता है। हम्म। और जो हमारा पेरेंट फंक्शन होगा वो चाइल्ड की एक्सेस नहीं कर सकता है। ये हमारा हम्म। लेक्सिकल स्कोप आता है। और जो क्लोजर होता है जैसे कि अगर हमने जो पेरेंट फंक्शन है उसको बाहर से हमने कॉल किया हुआ है और जो अंदर का फंक्शन है उसको अंदर ही कॉल किया हुआ है। तो जो हम्म। क्लोजर क्या करता है जितने भी अंदर जो पेरेंट के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे या जितने भी कोई वेरिएबल होंगे सारे एक्सेस कर लेगा वो क्लोजर होता है। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें एक एक एरे भेज रहा हूँ, एरे ऑफ नंबर्स। इस पे तुम्हें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इसमें से तुम्हें फिल्टर आउट करना है सारे इवन नंबर्स। या इवन नंबर्स रहने दो, इसको चेंज करते हैं। इसको तुम्हें फिल्टर आउट करना है, जो 3 से छोटे जो सारे नंबर्स हैं वो तुम्हें मतलब फिल्टर करके उसको रखना है, बाकी सारे को रिमूव कर देना है। मतलब 3 4 5 को तीन से रिमूव। जो हाँ, लेस तीन देन से जो 3। छोटे हैं उसको रखना है। हाँ, मतलब फिल्टर इस तरह से यूज करो कि जो हमारा फाइनल हम्म, रिजल्ट हो उसमें 0 1 2, बस इतना ही है।
इसे लेस निकाल लेना भैया। हाँ, 3 से छोटा। कंसोल डॉट लॉग कर लें भैया। नहीं नहीं, कंसोल डॉट लॉग नहीं करना है हमें। फिल्टर क्या काम करता है ये उसको बताओ मुझे। फिल्टर मतलब कोई जो कंडीशन हुई उसके हिसाब से चीजों को फिल्टर कर लेता है। फिल्टर करके हमें कुछ वो देता है या बस कंसोल में प्रिंट करवाता है? हम्म क्या देता है वो? जो रिटर्न रिटर्न करता है। हाँ, तो ये जो रिटर्न करेगा उसको किसी वैल्यू में सेव करवाओ। ठीक है, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो, उसमें सेव करवाओ। बाय डिफॉल्ट भी रिटर्न ही करता है। उसको भी रिमूव भी करना है जो एक्स्ट्रा है, बड़े हुए हैं। नहीं, बेसिकली हमें एक नया इस तरह से एरे नहीं क्रिएट करना है। जो फिल्टर मेथड है वो खुद ही एक रिटर्न करता है एक एरे, जैसे तुम पहले लिख रहे थे ना, नंबर्स के आगे हम्म लेट रिजल्ट इक्वल टू, एक बार हम्म नंबर्स के पहले लिखो लेट, या कॉन्स्ट लिख दो, कॉन्स्ट। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको रिजल्ट को एक बार चेक करो, कंसोल लॉग करो, और इफ के अंदर जो तुमने लिखा है ना, ये लाइन एरर देगी, उसको हटा दो। हाँ, एक बार कंसोल में, हाँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करो रिजल्ट को। तो यहाँ पे तुमने एरे कोई क्रिएट नहीं किया, लेकिन रिजल्ट के अंदर ऑटोमेटिक एरे एक आएगा। एक बार चेक करके देखो तुम। जी। एक एरे आ रहा है। अब ये वाला जो एरे आ रहा है ना, हम्म इसके अंदर होना चाहिए 0 1 2। बस कुछ ऐसा कोड लिखो कि जो एरे है उसके अंदर 0 1 2 आ जाए।
गूगल करना है तुम्हें? नहीं, गूगल नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैप मैप का यूज़ पता है कि नहीं? हाँ, मैप यूज किया है। तो मैप का क्या काम होता है? मैप बेसिकली जो हमारा कोई भी अगर एरे दिया हुआ है, जैसे कि मैंने रिएक्ट में यूज किया मैप को। जैसे कंपोनेंट कई सारे होते तो उनको मैप करा के एक एक करके उनको लेने लेके आने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मैप यूज़ करो और हम्म। फिल्टर हटा दो और मैप करके ये जो सारे नंबर्स हैं, इन सारे हम्म। नंबर्स को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। मतलब जो रिजल्ट एरे है ना, उसमें ये सारे नंबर्स हैं लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हैं। हाँ। तो डॉट लॉग। यहाँ पे 3 से कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इफ इको ही कंडीशन। रिटर्न करना है। अब इसको स्ट्रिंग में बदलना है। हम्म। हो गया भैया। ठीक है। इसको एक ऑब्जेक्ट में बदलो जहाँ पे की जो है वो की जो है वो अपने आप में हो, मान लो एज। ठीक है। और वैल्यू हो ये नंबर। ये कैसे करोगे? उसके अंदर जैसे 5 यहाँ पे नंबर्स हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट हो जाए जहाँ पे एज लिखी रहे। किसी की एज 0 है, किसी की एज 1 है, किसी की 2 है। ऐसा करो। नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये बताओ मुझे, तुम्हें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रहा हूँ, चैट चेक करो। कॉपी कर लो।
इसका आउटपुट तुम्हें बताना है कि लाइन नंबर इधर 23 और 24 इस पे क्या आएगा इसका आउटपुट। console डॉट लॉग यूजर वन, तो हमारा जो यूजर वन ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। हम्म, ठीक है। यूजर 2 में क्या आएगा? में भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें नेम क्या होगा, उसमें सिटी क्या होगी, ये पूछना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये यूजर चेंज वन का, होगा जो यूजर डॉट, हाँ, यूजर वन के अंदर यूजर क्या टू नेम आएगा, डॉट, यूजर 2 के अंदर क्या नेम आएगा, ये क्वेश्चन। यूजर वन के अंदर जो है हमारा वो जॉन आएगा और यूजर टू के अंदर रमेश आएगा। अच्छा, और यूजर वन की सिटी क्या होगी, यूजर 2 की सिटी क्या होगी? यूजर वन की सिटी मुंबई होगी और इसकी पुणे होगी। ठीक है, तो एक बार चेक करो कंसोल के अंदर। दोनों में सेम आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो यूजर 2 को कुछ चेक भी नहीं किया, मतलब छुआ भी नहीं। कोई आइडिया? नहीं। ठीक है, अभी एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो हम यहाँ पे यूजर 2 नाम का वेरिएबल ना बनाए, यूजर 2 जहाँ जहाँ लिखा है, लाइन नंबर 18 को कमेंट आउट कर दो, और लाइन नंबर 24 को कमेंट आउट कर दो, ठीक? और लाइन नंबर 20 पे और 21 पे यूजर 2 को चेंज करके 1 कर दो, बस। हाँ, ये, हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि इसका आउटपुट क्या होगा, पहले तो ये बताओ। इसमें जो यूजर को हम यूजर 1 को कंसोल लॉक करेंगे, तो उसका नेम क्या होगा, उसका सिटी क्या होगा? नेम और सिटी भैया चेंज हो जाएगा, ठीक रमेश है, और पुणे हो जाएगा। ठीक है, रमेश और पुणे हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यूजर 1 वेरिएबल तो हमने कॉन्स्ट यूज करके बनाया है, और हमने ये पढ़ा है कि कॉन्स्ट यूज करके अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म, ये फिर कैसे हो रहा है, ये तो चेंज हो जा रहा है। इसका आइडिया नहीं है भैया मुझे। अच्छा, ठीक है, इसको अगर तुम्हें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, ऑब्जेक्ट जहाँ पढ़ा है ना, ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हम्म, हैं, उधर पढ़ना तो समझ आएगा। ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, ये भी मैंने पढ़ा पढ़ा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम एक और लास्ट क्वेश्चन में भेजता हूँ तुम्हें। हम्म, ये कॉपी करो और इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। मान लो हम इसको कंसोल लॉक कर रहे हैं, कंसोल लॉक के अंदर इसको डाल दो, पूरा कोड कमेंट आउट कर दो, और कंसोल लॉक के अंदर जो कॉपी किया उसको रख दो। सॉरी,
कंसोल लॉग के अंदर इसको रख दो। ये पहले से एरर दिखा रहा है अभी ये। अच्छा, एक डबल डबल इक्वल टू हटा दो यहाँ से, सिंगल इक्वल टू लगाओ। सिंगल, ये एरर दिखा दिया, मतलब ट्रिपल इक्वल टू हटा के डबल इक्वल लगाओ यहाँ पे। कोई बात नहीं, इधर पेस्ट ही नहीं करना था, ऐसे ही बताओ क्या आउटपुट होगा। ट्रू आएगा भैया। ट्रू आएगा। हम्म। क्योंकि एरे दोनों सेम है ना। जी। इसको तुम चेक करो, इसका आउटपुट। फॉल्स आ रहा है। और एक बार यहाँ पे कंट्रोल वी करो, जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो बेसिकली। कंट्रोल वी करो, यहाँ पे नहीं, उधर कंसोल में पेस्ट करो। ठीक है, तो चाहे डबल इक्वल टू यूज करोगे चाहे ट्रिपल इक्वल टू यूज करोगे, फॉल्स ही आएगा। हम्म। तो इसका आइडिया है कोई, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। एरो तो इक्वल टू है दोनों। हम्म, ठीक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ये सारे फंडामेंटल चीजें हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत होगी कोडिंग में। हम्म। चलो अभी हम लोग उस पे चलते हैं, एक प्रैक्टिकल उस पे, ठीक है, मशीन कोडिंग राउंड पे। तो इसी जो HTML खुला है ना, इसी के अंदर तुम एक वो बनाओ, एक एक तरह से समझ लो टाइमर बनाना है तुम्हें, कि उस पे क्लिक करो, एक बटन रहेगी स्टार्ट, उस पे क्लिक करोगे तो वो बढ़ के ऐसे 1 से लेके 10 तक जाएगा। फिर उस पे अगर क्लिक करोगे स्टार्ट, तो फिर 10 से लेके 0 तक आएगा। फिर से क्लिक करोगे, फिर 0 से लेके 10 तक जाएगा। ठीक है, बस एक H1 के अंदर जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, उधर लिख दो 0, बाय डिफॉल्ट 0 लिख दो इसके अंदर। और एक बटन दे दो जिसके अंदर लिख दो स्टार्ट। जब स्टार्ट पे क्लिक करे कोई, तो 0 से लेके 10 तक जाएगा और अपने आप वहां पे रुक जाएगा। और जाता हुआ दिखे हमें, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आंख से दिखे। जैसे मान लो सेकंड चल रहा है, खूब तेज तेज सेकंड वाला वो चल रहा है, हम्म। तो 1 सेकंड में 2 3 नंबर ऐसा बढ़े, ऐसा कर दो। और फिर से जब 10 पे जाए, तो फिर जब क्लिक किया जाए स्टार्ट पे, तो फिर से ये घट के फिर से 0 तक आ जाए, ऐसा करना है तुम्हें। ये ये पूरा कोड चाहो, अगर तुम्हें चाहिए उसको जावास्क्रिप्ट वाला, तो किसी और एक ऐप डॉट सी जेएस फाइल बना लो, उसमें जेएस का जो कोड है वो लिख लो, ताकि क्लीन रहे जब तुम लिखो कोड। उसके अंदर वो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे पेस्ट कर दो, कॉपी करके, कट करके। बस। ठीक है, और इसके लिए तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है। अभी 5:08 हो रहा है, तो 38 तक तुम्हारे पास टाइम है, 5:38 तक। अगर ये चीज कर दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डिसाइड करेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, तुम करो, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट में, ठीक। सही है, इसका जो डिले है ना, इसको 300 मिलीसेकंड, ठीक है, 200 मिलीसेकंड, ठीक है। ठीक है, अभी 10 पे जाके रोकना है तुम्हें।
अरे ये तो हाँ, ये तो हमेशा कम ही रहेगा। कोई अगर हेल्प चाहिए तुम्हें गूगल से तो गूगल सर्च कर सकते हो। बस। ठीक है भैया। हाँ, बस ये मत सर्च कर लेना कि यही प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, और कोई भी सर्च कर सकते हो। मतलब सर्च कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे सर्च कर सकते हो। हाँ, इसको रोकना भी है 10 पे। और मैं कुछ भी नहीं चाहिए।
या सेट टाइम स्टॉप करके भी कुछ होता है शायद रोकने के लिए, कोई फंक्शन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सर्च करो ना, देखो कैसे स्टॉप करते हैं। वही तो मैंने बोला था कि सर्च कर सकते हो। क्लियर इंटरवल, हाँ होता है। हो गया भैया। सही, एक बार फिर से क्लिक करो, एक बार फिर से क्लिक करना। फिर से क्लिक करो। नहीं नहीं, 3 बार करना है। रिफ्रेश में? हाँ। अच्छा, 3 बार करना। जैसे अभी रुका, हाँ ठीक है। अभी एक काम करो, हम्म। जब ये चलता रहे, जैसे काउंटर जब चल रहा है, तो जी भैया। चलते टाइम उसी के बीच में क्लिक कर दो। जैसे 2 3 पे पहुंचे फिर से क्लिक कर दो। सही, ये बग है।
बेसिकली जब तक ये चल रहा है तब तक कुछ ना हो, मतलब स्टार्ट हम्म। बटन क्लिक करने पे कुछ ना हो, 10 तक हो जाए अपने मन से। अच्छा, मतलब हाँ, समझ गए समझ गए। बटन को डिसेबल करना है। डिसेबल होता है, अच्छा, याद है। चल रहा है? हम्म। सही है। अभी इसको मैं थोड़ा और डिफिकल्ट करता हूँ, डिसेबल नहीं करना। इनेबल रहे, लेकिन जब क्लिक हो तो कुछ हो ना वहीं बस। से वापस हाँ, डिसेबल वाला कुछ सारा। होना है। हाँ, डिसेबल वाला कोड कमेंट आउट कर दो सारा, हम्म। जितना भी है। ये भी एक तरीका सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि डिसेबल ना रहे, यूजर क्लिक करे लेकिन उसके क्लिक करने पे वो रुके ना, बिना डिसेबल किए। डिसेबल किए। बटन बेसिकली डिसेबल करना ही नहीं, वो क्लिक हो वहां पे, वो फंक्शन कॉल हो, लेकिन वो फंक्शन कॉल होने पे कुछ हो ना, कुछ मतलब पहले ही बंद हो जाए वो फंक्शन, ऐसा करना। एट्रीब्यूट यहाँ सेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, उस तरह से नहीं, वो भी डिसेबल ही करेगा ना एक तरह से। अच्छा। हम्म, मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ कि तुम ये चेक हम्म। करो कि तुम्हारा काउंटर चल रहा है अगर, ठीक है,
इसी तरह से चेक कर पाओ कि अगर काउंटर तुम्हारा चल रहा है, नंबर घट बढ़ रहा है, तो तुम ऊपर ही चेक करके रिटर्न कर दो। ऐड इवेंट लिसनर में सबसे ऊपर ही ये चेक करो कि अगर काउंटर चल रहा है तो रिटर्न लगा दो, बस ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। अब तुम्हें ये पता करना है वो चल रहा है कि नहीं काउंटर, ये कैसे करोगे पता? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुमने बना दिया जितना रिक्वायरमेंट था, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन इंटर्न रोल के लिए होता है। ठीक है, तुम्हें एक एसडी की पोजीशन नहीं मिलेगी, इंटर्न के लिए पोजीशन मिलेगी। और तुम्हें 3 महीने या 6 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी। उसमें ये देखा जाएगा कि तुम, ठीक है, अब तुम अपनी स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो, इंटरव्यू ओवर हो चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला राउंड तुमने क्योंकि कर लिया, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो पाया है। और इंटर्न रोल के लिए तुम्हारा सिलेक्शन होगा और फिर 3 महीने काम करोगे। ठीक है, हालांकि ये मॉक इंटरव्यू है, लेकिन अगर असली होता, तो अगर मैं ले रहा होता असली इंटरव्यू, तो तुम्हारा सिलेक्शन मैं कर लेता। मैं बोलता कि हाँ, इसको इंटर्न के लिए ले सकते हैं। अगर तुम इंटर्न के लिए ज्वाइन करना चाहोगे तो तुम इंटर्न के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि तुम और कितना अच्छे से सीख सकते हो। देखो, क्योंकि तुम, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ना, लेकिन तुम काम करवा पा रहे हो गूगल सर्च बस करके। वही मेरे साथ हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हाँ, चीज़ें कर लेता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन हाँ, नहीं कर पाता हूँ मैं। हाँ, तो जब तक तुम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट्स कई सारे क्लियर भी नहीं है, जैसे मैंने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे, एरे दो एरे इक्वल टू हैं, तो उसमें अब एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, तुम्हें या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, है ना। हुँ। जैसे ऑब्जेक्ट, हमने जब दो ऑब्जेक्ट यूजर वन यूजर टू बना के चेंज किया, यूजर टू को चेंज किया, यूजर वन चेंज हो गया, तो या तो ये तुम्हें पता होगा या तो नहीं पता होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है, हाँ। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हैं, और दूसरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो। तो अगर तुम्हें एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम्हें रोल चाहिए, तो ये सारे जो पहले के 2 राउंड्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मतलब उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और इस बेस जो ये लास्ट वाला राउंड था मशीन कोडिंग राउंड, इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट मैंने दिया था, और क्योंकि तुमने कर लिया, तो इसीलिए तुम्हारा इंटर्न के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और आ, ठीक है, तुम अभी मुझे ये बताओ कि तुम कितने पॉइंट्स दोगे, अगर तुम पॉइंट देना चाहो तो कितने पॉइंट्स दोगे 10 में से? वैसे थ्योरी में तो 3 से 4 दूँगा पॉइंट, 3 दूँगा पॉइंट हाँ, थ्योरी में। हाँ, वही है।
थियरी में इतना ही पॉइंट मिल सकता है। और हम्म, यहाँ पे जो मशीन कोडिंग वाला राउंड था, इसमें मैं 8-9 पॉइंट्स दे सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा ओवरऑल जो पॉइंट है वो मान लो कि 6 से ऊपर हो गया है, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और ये इंटर्न रोल के लिए तुम मानो कि सिलेक्शन हुआ है, तो अभी जो इंटर्न इंटर्न वाला रोल होता है वो फाइनल नहीं होता है। ठीक है, उसमें तुम इंटर्नशिप करोगे, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें वहाँ पे फुल टाइम रोल मिलेगा, अगर है ऐसा प्रावधान तो। ठीक है, ऐसी कई कई इंटर्नशिप बस ऐसी होती हैं, 3 महीना 6 महीना काम करके खत्म। ठीक है, तो अभी फुल टाइम तुम्हारा नहीं हुआ है सिलेक्शन। उसके लिए तुम बताओ, अब तुमने इस इंटरव्यू से क्या सीखा? काफी चीजें सीखनी भी है। हम्म। जैसे कि कई क्वेश्चन साथ में पूछे तो उसमें कॉन्सेप्ट आया तो उसमें लगा कि हाँ इन चीजों पर काम करना चाहिए मुझे। हम्म। तो अब देखो, तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, सीखना है गहराई से। जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पूछे उनका तुम जाके आंसर ढूंढना। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें अगर देखोगे तो ये हम्म, सारी चीज़ें तुम्हें हर एक चीज़ कवर मिलेगी, जो पूछा है जो नहीं पूछा है सब कुछ। ठीक है, तो वो करो। सीएसएस के लिए भी मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे अगर प्लेलिस्ट आराम से फॉलो करोगे तो जब कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होगा तभी बढ़िया तुम एक डेवलपर बन पाओगे। ठीक है, और तभी इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओगे। और जो भी चीज़ सीखो उसको अगर तुम्हें क्लियरली पता है तो कम से कम हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही पाओगे। ऐसा नहीं है, जो तुम्हें हम्म, पता था उसको तुम एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि तुम हम्म, एकदम से बंद ही हो जा रहा है तुम्हारा मुंह, बोल ही नहीं पा रहे। नहीं। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक्सप्लेन कर पाओगे। और एक चीज़ और, तुम अपना इंग्लिश अच्छा करो ताकि इंग्लिश में तुम आराम से इंटरव्यू दे पाओ, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। बहुत हम्म, बहुत कम कंपनीज हैं जो हिंदी में अलाउ करती हैं बेसिकली। मान लो जो हमारी नॉर्थ की कंपनीज हैं, और वहाँ पे कोई फॉरेन क्लाइंट से बात नहीं करना, उनका क्लाइंट जो है वो भी नॉर्थ का ही है। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पे भी अलाउ करती है, नहीं तो सारी कंपनीज को इंग्लिश चाहिए होता है, इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। तो अगर तुम्हें कितना भी अच्छा आ जाए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो उसी के कारण रिजेक्ट हो जाओगे। तो हम्म। उस पर इम्प्रूव करो। और बस यही है। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नहीं, आपसे कंफर्म कर लिया था उस दिन हमारा कॉल आया था तो। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, बाय। ठीक है। बाय। हम्म, थैंक यू भैया। चलो।